welcome our guest Dhaval Makhija sir and Head of Department Dr. Deepak Sinha sir, all the respected faculties and dear participants. So today's topic of the session is discover the lasting solutions. जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबकी जिंदगी में अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयों से जूझ रहे होते हैं, अपनी मुसीबतें होती हैं, हम सब हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे होते हैं। और आज का सेशन पूरा इसी पर बेस्ड है। आज के सेशन के एंड में इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो बिना किसी भी देरी के चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर धवल मखीजा सर के पास। He has done his bachelor's in information technology and MBA from Indian Institute of Information Technology, Gwalior. For some years, he has worked in Wipro Technologies. He is currently the director of Mac Buildcon Private Limited. He is inspiring so many youth since year through his sessions, guidance, etc. So now I welcome you, sir, and over to you now. The digital dais is all yours. Hare Krishna. Thank you so much. I am Dhaval, and firstly, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are absolutely audible. Okay. And do I have the access to share the screen? Yes, sir. You are the co-host, so I think you can share your screen. There is no issue. Okay. Okay. So is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Okay. So warm greetings and welcome to everyone. And I would like to thank Sage University to. Sorry, Akhil, should I keep my video on? Will that be okay? Yes, sir. You can, please. Everyone will. It would be convenient for everyone. Okay. Okay. Yes, sir. Perfect. Yeah. So today we are going to discuss about a very interesting topic, discover lasting solutions. तो हम लोग सब अपने जीवन में सॉल्यूशंस चाहते हैं। इनफैक्ट जो एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस है वो ही ये है कि एक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन करना है। जो आदि काल में जो मानव था उसके पास प्रॉब्लम थी रोटी कपड़ा मकान की, तो वो प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके उन्होंने सॉल्व किया। एंड द वेरी एम ऑफ टेक्नोलॉजी, very aim of anything, like anyone at any post, is to solve a problem. Sage University अपने आप में तो the Sage University is trying to solve a problem of giving good education to children so that they can face the future problems in a better way. So आज we are going to discuss about lasting solutions. And what do I mean when I say the word lasting solution? तो कोई भी चीज के जो solution है वो दो टाइप के solutions होते हैं. One is a temporary solution and one is a permanent solution. So I'll give you two examples of this. एक let's say अगर किसी को boil हो जाता है, pimples हो जाते हैं, and that person goes to a doctor and वो डॉक्टर उसको बोलता है कि एक काम करो, आप ये क्रीम मैं आपको दे देता हूँ, ये क्रीम लगा लो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो क्रीम लेता है, लगाता है और 2 दिन बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एंड ही इज वेरी हैप्पी। फिर 7th डे तक वो देखता है कि वो पिंपल्स वापस आ गए एंड देन ही गोज टू द डॉक्टर अगेन एंड ही सेज कि अरे पिछले हफ्ते ही तो आपको बताया था, इट्स सो सिंपल, ये क्रीम ले लो और लगा लो। And this keeps going on and on and on and on. So is this a solution? Yes, this is a solution. But is this a good solution? No, it is not a good solution. Why it is not a good solution? Because it is a temporary solution. Vis-a-vis अगर कोई
ऐसा डॉक्टर के पास जाता है और वो उसको देखता है कि हाँ ये आपकी स्किन को मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर पिंपल्स हो रहे हैं, बट आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज कि आपके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है। तो लेट मी पुट एन इंजेक्शन जो कि उस इन्फेक्शन को सॉल्व कर देगा, और वो यदि इन्फेक्शन सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये पिंपल आना बंद हो जाएंगे। एंड ही इंजेक्ट्स द इंजेक्शन। तो जब वो इंजेक्शन जाता है शरीर में और जो इन्फेक्शन है उससे उसको सॉल्व हो जाता है, तो पिंपल्स आना हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। सो दिस इज अ परमानेंट सोल्यूशन, इसकी लास्टिंग ज्यादा है। तो any sane person, any smart person, any intelligent person will always crave for such kind of intelligent solutions. So today we will try to look ki what are the what kind of permanent solutions exist जो हमको चूज करने चाहिए। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि कोई भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने से पहले फर्स्ट थिंग इज कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, व्हाट इज द प्रॉब्लम और हमको कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू सी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। सम ऑफ अस हु वुड बी इन देयर फाइनल इयर्स, तो कोई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा कि मेरे को जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। कोई हो सकता है किसी के परिवार में अभी पैंडेमिक चल रहा है, हमारे कोई नियर एंड डियर वंस पैंडेमिक से स्ट्रगल कर रहे होंगे, कोई जना बीमारी में स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई जना कहीं किसी को एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना होगा पर लॉकडाउन की वजह से जा नहीं होगा, तो वो भी उसकी एक प्रॉब्लम होगी। सो देयर आर प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स, अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या अनगिनत प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो हमको देखना चाहिए, जो हमको सॉल्व करना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे हमने अभी सोल्यूशन में देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वन इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, वन इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। तो वैसे ही देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वन इज अ टेम्पररी प्रॉब्लम, वन इज अ परमानेंट प्रॉब्लम। अब व्हाट इज अ टेम्पररी प्रॉब्लम? टेम्पररी प्रॉब्लम कैन बी कि मेरे को अभी एक पिज्जा खाना है, तो मैं वो कैसे खा पाऊंगा? उसके लिए मैंने स्विगी गया, जोमेटो गया, कोई ऑनलाइन साइट देखी, डोमिनोज को देखा, और इन सब चीजों से कोशिश कर रहा हूं कि लॉकडाउन है पर फिर भी जैसे तैसे करके मेरे पास ये चीज आ जाए और मैं आज कुछ खा लूं, पिज्जा खा लूं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बट दिस इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम। तो a lot of times we get consumated by problems which are actually not real problems. तो हमको इसीलिए जिस तरह से अगर अगर हम जब छोटे थे, जब हम 5 साल के थे, तो उस समय हमारे जीवन की प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि क्या मेरे को आज बॉल मिलेगा कि नहीं, क्या मेरे को डॉल मिलेगी कि नहीं, मेरे को यदि डॉल मिल जाए तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज होगी, मेरे को यदि बॉल मिल जाए तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज होगी। तो अगर वो हमको मिल जाती थी तो वो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिलती थी तो वो हम बहुत दुखी हो जाते थे। तो हमारी लाइफ का जो सेंटर था वो हमारी बॉल या क्रिकेट का बैट या हमारी डॉल्स या हमारे टॉयज होते थे। पर जो हमारे माता पिता थे, दे कुड वेरी इजीली सी कि ये एक्चुअली रियल प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे दृष्टिकोण से जब हम छोटे थे तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी, और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी तो तुरंत हम रोने लगते थे, एंड वी यूज्ड टू फील कि हमारी पूरी दुनिया खत्म हो गई। बट दैट वाज एक्चुअली नॉट अ रियल प्रॉब्लम। बट जिस लेंस से, जिस दृष्टिकोण से हम देख रहे थे, उस दृष्टिकोण से वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो लेट्स ट्राई टू सी what are the kind of problems which a lot of people would be facing, and can we categorize them in real problem and temporary problem, and let's see what solution has science, technology and medicine to offer, and what are the real problems, and उन रियल प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन क्या हमारे वैदिक विजडम में, भगवत गीता में या शास्त्रों में जो कि 5000 साल पहले बोले गए हैं, उसमें से कुछ सोल्यूशन मिल सकता है क्या? तो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स। So this is a boy who is discussing about his problems. So
maybe we lot of us can relate with this कि ये शायद कहीं किसी ना किसी लेवल पे हो सकता है हम भी फेस कर रहे हो प्रॉब्लम कि हमारी फिजिक अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मेरे बाइसेप्स नहीं है, मेरा बिल्ट स्ट्रांग नहीं है, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं उस टाइप का मेरा फिजिक नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम। मेरे पास नौकरी नहीं है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, there is a huge amount of turmoil going on between my mother and my father, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या मेरे फैमिली में दूसरे इश्यूज हैं, मेरे फैमिली में सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आई एम नॉट हैंडसम, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं, या आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं दिखने में जितना सुंदर दिखना चाहती हूं उतना सुंदर नहीं हूं, मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया, या मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या ये प्रॉब्लम्स हैं? आर दीज द रियल प्रॉब्लम्स? सो वी नीड टू एनालाइज आवरसेल्फ। आई कैन मेरी आवाज इको हो रही है क्या अखिल? नो सर, एक्चुअली अखिल का माइक ऑन है एंड उनकी वॉइस थोड़ा सा ओके वहां से डिस्टरबेंस है। ओके ओके ठीक है, so let's continue. So we will try to look at ki what are the real problems. So these are problems, but these problems are temporary in nature. ये टेम्पररी नेचर की प्रॉब्लम्स पे अगर हम बहुत ज्यादा फोकस कर लेंगे तो हम रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि हम परमानेंट प्रॉब्लम्स को कितना सॉल्व करें, टेम्पररी को कितना सॉल्व करें। तो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स। So how do we define real problems? Real problem की definition होती है it is common to all, सभी लोगों के साथ वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेकेंड, किसी को भी वो पसंद नहीं है, नो वन wants that problem, किसी को भी वो चीज पसंद नहीं है। थर्ड इज nobody can avoid it, हम चाहते नहीं है कि वो प्रॉब्लम हमारे पास आए, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। ये दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स, ये है ना रियल प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं। तो लेट्स सी ये वाले कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स कौन सी प्रॉब्लम्स इसके अंदर फिट होती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स इन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को पूरी तरह से करती हैं। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स वो प्रॉब्लम करती है तो लेट्स ट्राई टू सी एंड फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स देन प्रोबेबली ये जो छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो फॉलो करेंगी, वो अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। जिस तरह से कि यदि कोई धागा है जिसके अंदर है ना बहुत सारी गठाने हैं, तो अगर यदि हम सारी की सारी गठानों को एक साथ ओपन करना चाहेंगे तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम एक एक करके गठानों को खोलेंगे तो इन दैट केस हम लोग जब तक दूसरी तीसरी चौथी गठान तक खोलेंगे तो हमारे पास बहुत सारे उनका सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स। The real problems are four: birth, disease, old age, and death. Bhagavad Gita says, one who can perceive birth, death, old age, and disease as real problems is in knowledge. अब ये क्यों रियल प्रॉब्लम्स हैं? सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं पीछे रिवर्स से चालू करता हूं। सो डेथ, इज डेथ अ प्रॉब्लम? Yes, it is a problem. Let's look at the characteristics of death. Is it common to all? Yes, it is common to all. In English, there is a proverb which says कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर होते हैं तो you say as sure as death. In probability एक concept रहता है कि यदि मैं रोज इस बात के ऊपर पैसे लगाऊंगा कि मैं आज मरने वाला हूं तो एक ना एक दिन तो मैं वो अवश्य जीतूंगा। I will win that for sure. So death is common to all. Now, do we want to die? No, no one wants to die.
वी वांट टू लिव लॉन्ग, वी वांट टू लिव फॉरएवर। हमको हमारे सब लोगों के साथ, हमारी फैमिली और सबके साथ इतना प्यार है, और स्पेशली अगर कोई लेट्स से देयर इज समवन ऑफ द स्टैचर ऑफ मुकेश अंबानी हु हैज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, सब चीजें हैं उनके पास, तो विल ही वांट टू डाई एट एनी पॉइंट इन टाइम? नो, ही विल नॉट वांट टू डाई। बट विल ही डाई? यस, ही विल डाई। आज धीरूभाई अंबानी, जस्ट अ सेकंड, to ask you something. Can I say this? yes, go. Yeah, can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah. So no, so death का हमने ये समझा कि death is something that is common to all, nobody wants it and nobody can avoid it. तो death, we should try to find solutions to death. क्या death का कोई solution है? Is there a solution to death? We'll come to it later. Old age. Who likes to get old? No one likes to get old. Everyone wants to be in their youth. Cosmetic is a big industry, one of the biggest industries in these times. Cosmetic industry जो है वो is all about how to make people look younger than what their actual age is. So no one wants to get old, but everyone is getting old. So old age is a big problem. Disease. Is there anyone who likes to have disease? Is there anyone who likes to have illness? No one. Especially अभी तो pandemic चल रहा है and we are shattered by COVID left, right and center. तो ये वाली सिचुएशन भी बहुत गंभीर सिचुएशन है. कोई भी जना ऐसा नहीं है कि वो डिजीज चाहता है, बल्कि हम लोग सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इस पैंडेमिक से बाहर आए. तो डिजीज हम लोग नहीं चाहते हैं. बट डू वी गेट डिजीजेस? यस, वी गॉट. क्या कोविड से पहले हम में से कोई भी एक जना क्लेम कर सकता है कि हम में से किसी को कोई डिजीज ही नहीं हुई है? नो, वी कैन नॉट क्लेम दैट. हम चाहते हैं कि हम सदैव स्वस्थ रहें. जो दुनिया में सबसे स्वस्थ व्यक्ति भी रहा होगा, वो भी अपने जीवन में किसी न किसी समय पे डिजीज से अवश्य ही सकम किया होगा. birth is a big problem. Now why is birth a big problem? Actually birth जो है ना, वो हम कंसीव नहीं कर पाते, पर हम बर्थ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जस्ट इमेजिन कि जब एक बच्चा अपनी माँ के वूम में से निकलता है तो वो पूरी तरह से कॉन्शियस होता है, राइट? वो बच्चा पूरी तरह से देख सकता है, उसकी आंखें जो हैं वो ठीक रहती हैं, उसके हाथ पांव हिलते हैं, वो रोता है, उसको लाइट दिखती है, ये सब चीजें होती हैं जब बच्चा जैसे ही अपनी माँ के उसमें से निकलता है. एंड जस्ट इमेजिन जब वो निकला था तो ये जो उसके सेंसेस हैं, जो उसके हाथ वो हिलाना चाहता है, जो वो उसके आंखों को वो देखना चाहता है, जो वो सूंघना चाहता है, जो वो चीजों को टच करना चाहता है, वो सब चीजें, वो सारे सेंसेस उसके डेवलप्ड हैं. पर वो माँ के वूम में आने से पहले, जब वो माँ के वूम के अंदर था, तो ये सब चीजें उसको हर्ट कर रही थी. वो एक बच्चा एक माँ के वूम में उस कैदी की तरह रहता है, जैसे किसी जेल में यदि आपकी जितनी हाइट है, आपकी जितनी बॉडी की साइज है, उसका 80% एरिया के अंदर आपको डाल दिया जाए, उस जगह पे कोई लाइट नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, और वहां पे आपका जो आपको डेफिकेशन करना है, जो यूरिनेशन करना है, जो स्टूल पास करना है, वो भी उसी जगह पे होगा. और कई ऐसे उसमें होगा कि आपको जो खाना आने वाला है वो भी उसी जगह से आएगा. एंड देयर कैन बी टाइम्स व्हेन व्हाट यू आर गोइंग टू डेफिकेट वो आपके खाने में मिल जाएगा, और लाइट बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आप एक कदम या एक चीज को भी, अपने हाथ को या पाँव को या किसी भी चीज को हिला नहीं पाओगे. तो कैन यू इमेजिन कि वो स्टेट कितनी मिजरेबल होगी? और क्या एक बच्चे की स्टेट एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती? जब वो अपनी माँ के वूम में होता है तो क्या वहां पे लाइट आती है? नहीं. क्या उस जगह पे वो जो भी डेफिकेशन, जो बच्चा है वो कंटिन्यूअसली डेफिकेट करता है, तो अगर वो यूरिनेट कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, जो पैदा होने के 1 घंटे बाद से चालू कर देता है, तो पैदा होने के भी पहले से कर रहा है. ऐसा तो नहीं है कि वो पैदा हुआ तभी ये प्रोसेस चालू हुई है, तो उस टाइम भी कर रहा है. तो वो उस एरिया में रह रहा है. उसके अलावा ही इज सराउंडेड बाय
जो पूरा पूरा जो मदर के अंदर जो जो एसिड्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट, मतलब अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो करीब 96 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो अ चाइल्ड इज इनसाइड, अगर अभी मैं आपको बोलूं कि 96 98 डिग्री 50 डिग्री 55 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है डेजर्ट्स के अंदर, वहां पे खड़े रहने में हमारी जान निकल जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है, तो हम चाहते हैं कि अब एक एयर कंडीशनर लग जाए, एक कूलर लग जाए, हम घरों के अंदर रहें, हम बाहर नहीं निकलें। पर बच्चा जब शरीर के अंदर का तो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 96 98 डिग्री रहता है, तो वो उसके अंदर रहता है। तो staying in the womb for such a long duration is a very very troublesome process. तो ये जो चार हैं, ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, और भगवत गीता में इस चीज को एक्नॉलेज किया गया है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन से भगवत गीता का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वन हु कैन परसीव बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज एज रियल प्रॉब्लम्स इज इन नॉलेज। तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जीवन की सबसे बड़ी ये चार रियल प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमको फोकस करना चाहिए रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे, टेम्पररी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये हमने आई वुड लाइक टू क्विकली शो यू दिस वीडियो। सर एक्चुअली साउंड नहीं आ रहा है, तो सॉरी, कम अगेन। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आवाज नहीं आ रही है वीडियो में। ओके विजिबल है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। ओके ओके। पर वीडियो में जो दिख रहा है, वो जो जो चीजें हैं, दैट्स विजिबल, यू आर एबल टू रीड एवरीथिंग, राइट? या यस सर। सर आप चाहें तो वीडियो कर सकते हैं, मतलब सर हम उनका लिंक उनको भेज देंगे फिर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी होगा। अभी चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियोस वगैरह। ओके। तो ये इस वीडियो में एक चाइल्ड के बर्थ के सारे स्टेजेस डिस्क्राइब किए हुए हैं कि फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फिफ्थ में क्या होता है। एंड वी कैन एक्चुअली सी कि बाय द टाइम ही इज इन द 8th एंड द 9th मंथ पूरे उसके सेंसेस और सब चीजें डेवलप हो जाती हैं। एंड इट इज अ टॉर्चरस सिचुएशन टू बी इन द मदर्स वूम। सो टेकिंग बर्थ is a big problem. Birth is not a very convenient और ये जो प्रोसेस है बर्थ का, ये अलाइक है रिच के लिए, पुअर के लिए, हेल्दी के लिए, नॉन हेल्दी के लिए, अमेरिकन के लिए, इंडियन के लिए, इट इज अक्रॉस, इट इज सेम, everyone has to go through this. So the next problem we already discussed about old age. So apart from this, yeah, we also discussed about healthy and diseases, death. We also discussed about this कि हम सभी के लिए डेथ आएगी. Apart from these four problems, there are
other set of problems. So these can be divided into 3 categories. These are called threefold miseries. One is a misery that comes because of our own body and mind. तो headache, stress, depression, body pain, थोड़ा सा disease की तरफ ये वाली चीजें चली जाती हैं. Another set of problems are the problems that we get because of other living entities. कि कई बार कोई इंसेक्ट हमको बाइट कर लेता है, या ये जो पैंडेमिक हो रहा है तो इट्स एक्चुअली कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो कर देता है, मतलब स्प्रेड कर देता है डिजीज को. सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज क्रिएटेड बाय अदर लिविंग एंटिटीज. एंड थर्ड इज natural disasters. So natural disasters like tsunami, earthquakes, floods, tornadoes, these kind of problems also exist. So ये natural disasters हैं, इसके ऊपर हमारा कोई भी say नहीं है. So these are called threefold miseries. One is because of our own body and mind, one is because of other living entities, and one is because of natural disasters. They are called आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश. So आध्यात्मिक means आध्य आत्मिक, आत्मिक मेरी खुद के कारण problems, आध्यात्मिक. अधिभौतिक, अधिभौतिक means, भौतिक means other things, so problems arising due to other living entities. And अधिदैविक, दैविक is natural disasters. So we have seen अभी के केस में कि कोविड चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं, डिप्रेशन और कम्युनिकेशन का गैप, एंजाइटी, लोनलीनेस, दिस इज गोइंग टू अ रिकॉर्ड हाई, एंड विथ एवरी पासिंग ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. सो प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू आवर माइंड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी the even bigger than any disease that can hit going forward. So mind creates huge problems, so we need to be careful and understand कि ये problem हम कैसे solve कर सकते हैं. So आध्यात्मिक, अधिभौतिक, terrorism, animal bites, किसी के साथ हमारा fight हो जाए रास्ते पे, किसी insect का bite, someone is trying to steal something for us, someone is trying to harm us, कोई हमारे साथ झगड़ रहा है, someone is shouting on us. So these are the problems created by other living entities. Adhiदैविक, there is a you can see in this picture कि कहीं पे flood है, कहीं पे hurricane है, कहीं पे there is a famine हो गया है, कहीं पे there is an earthquake. तो these kind of problems are global warming. तो ये problems जो हैं are problems because of nature. It can also be, the reason for this can be human intervention, but they are caused by nature. So now we will see what can science, technology and medicine and do, and what Vedic wisdom will do. So science will try to solve a problem. Science will try कि कहाँ पे, जहाँ पे भी सुनामी आ रहा है, जहाँ पे उसका पहले से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ पे आ रही है, ऐसे सिस्टम्स बना लें ताकि वो प्रॉब्लम से को हम बच जाएं, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े. बट दैट डज नॉट मीन कि इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. सो वी विल ट्राई टू सी अ फ्यू थिंग्स कि how what kind of solutions is medical science giving to these real problems. So although we are advanced in medical science, still our plans of good health and happiness are thwarted by newer and newer diseases. What better time to understand this? Today we are at the epitome, मतलब आज मानव प्रजाति की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके हम परम पे खड़े हुए हैं. उसके बावजूद भी it has been more than a year and we have yet not been able to find a cure for COVID, for corona. तो ये पहले कोई बीमारी होगी, उसका सोल्यूशन आ गया, फिर जब तक उसका सोल्यूशन आएगा तब तक एक नई बीमारी आ जाएगी, जब तक वो बीमारी आएगी तब तक तीसरा प्रॉब्लम आ जाएगा. तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा. No one could have thought of COVID, but COVID has become reality. Pandemic has become a
reality. So old age and disease. So Muhammad Ali. So Muhammad Ali was one of the most prominent boxers of his times, but he suffered from a disease called Parkinson, and he was a boxer fighting champion in the ring. And when he became old and when he contracted with Parkinson, he could not even lift a cup of coffee. Parkinson is a नर्वस ऑर्डर डिजनरेटिव डिजीज. इसमें आपके नर्व्स जो हैं उनका कंट्रोल बॉडीज पे खत्म होते जाता है और आप कोई भी एक्शन अपना खुद नहीं कर पाते हो. So by towards the end of his life, he was not even able to lift a cup of coffee. Why do even such great personalities suffer from problems? Can scientific advancement help us put a full stop to all these sufferings? क्या साइंस के थ्रू हम ये वाली चीजें सॉल्व कर सकते हैं? Martin Luther King said, very interesting thing he says, now man can fly like a bird in the sky and swim like a fish underwater in a submarine. The only problem is he can't walk on land like human because of pollution. So in the course of solving problems, we are actually creating bigger problems. We are not solving those problems, we are creating bigger problems. So let me give you another example. So plastic. आज की तारीख में हमारा जो प्लास्टिक है वो कंजम्पशन यूज प्लास्टिक के मतलब अभी कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो हवा में हम जो हवा प्रदूषित हो गई है, पानी प्रदूषित हो गया है, खाना प्रदूषित हो गया है, तो जो हम सांस लेते हैं, जो हम ये सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो हम खाना खाते हैं, इन तीनों में जो प्लास्टिक का कंपोनेंट है वो इतना बढ़ गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट ईटिंग 1 क्रेडिट कार्ड या 1 डेबिट कार्ड इन अ मंथ. इतना ज्यादा इसका कंटेंट बढ़ता जा रहा है, एंड दिस कैन हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. सो मॉडर्न साइंस का कैसा है कि आई वेरी ऑफन शेयर दिस स्टोरी. ये परफेक्टली मॉडर्न साइंस के लिए एप्लीकेबल है. सो व्हाट हैपेंस इज एक एसेटिक रहते हैं, वो जंगल, वो हिमालय जाते हैं और वो अपने जीवन का उनका एम रहता है कि मेरे को साधना करनी है, मेरे को यहाँ पे ध्यान करना है, ध्यान और साधना करनी है, मेरे को मेडिटेशन करना है, और वो हिमालय जाते हैं. तो जब हिमालय में वो एक गुफा में जाते हैं और वहां पे रहते हैं और अपनी साधना करते हैं, तो एक माउस उनको बहुत परेशान करता है और वो माउस काफी सारे हो जाते हैं. तो वो किसी से सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं. तो उनके दिमाग में आता है एक काम करता हूं, मैं एक बिल्ली को लेके आ जाता हूं, कैट को लेके आ जाता हूं, तो वो जो कैट है वो इस माउस को खा लेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो बहुत अच्छा आइडिया लगता है और वो कैट लेके आ जाते हैं, एक बिल्ली ले जाते हैं और वो जो बिल्ली है उन चूहों को खाने लगती है और वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है. पर बिल्ली जो है वो म्याऊं 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 करने लगती है, और ये जब करती है तो उनकी साधना, फिर उनकी जो मेडिटेशन है वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है. तो वो फिर सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं. तो वो देखते हैं कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं क्यों करती है, तो उनको समझ में आता है कि बिल्ली को भूख लग रही है, बिल्ली को दूध चाहिए. तो सोचते हैं अच्छा एक काम करता हूं, मैं एक गाय लेके आ जाता हूं. तो जब मैं एक गाय लेके आऊंगा और गाय से जो दूध निकलेगा तो वो मैं बिल्ली को दे दूंगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो बोलते हैं हाँ ये भी बहुत अच्छा आइडिया है. तो वो एक गाय लेके आ जाते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, 2 बार 3 बार बिल्ली को दूध देते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. बिल्ली दूध पीती है एंड शी बिकम्स हैप्पी. अब उसके बाद जब गाय दूध देती है तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि गाय को तो चारा खिलाना पड़ेगा, गाय को घास देनी पड़ेगी और गाय को प्रॉपर केयर करना पड़ेगा. तो अब क्या करें. तो उनको एक जना सुझाव देता है कि आप एक काम करो, आप शादी कर लो और आपकी जो वाइफ है वो जो है वो गाय की सेवा करेंगी और वो गाय का जो चारा है और ये सब चीजें हैं वो टेक केयर कर लेंगी. तो उनको लगता है हाँ ये भी बात सही है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, और वो शादी कर लेते हैं और उनकी वाइफ जो है वो गाय को चारा देती है. और ये प्रोसेस उनका बढ़िया चल जाता है कि वाइफ गाय को चारा देती है, गाय की देखभाल करती है, उनके लिए खाना करती है
और गाय से जो दूध आता है वो बिल्ली को पिलाते हैं, और बिल्ली जो है वो चूहों की देख रेख करती है, चूहों को खा जाती है, और चूहे जो है उनको उनकी मेडिटेशन में सॉल्व नहीं करते, मेडिटेशन को डिस्टर्ब नहीं करते। अब कुछ समय बाद जब ये होता है तो उनकी वाइफ बोलती है कि अब मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे को बच्चे होने चाहिए। तो वो बच्चे पैदा करते हैं, और जैसे ही बच्चे होते हैं तो उनकी फैमिली लाइफ चालू हो जाती है, और जिस कारण से वो हिमालय गए थे वो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो जो मेडिकल साइंस है ना, या साइंस या टेक्नोलॉजी, इज एग्जैक्टली लाइक दिस। इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम, and it again solves that bigger problem with another technology but creates even bigger problem to be solved. So actually it does not solve any problem, it only creates bigger problems. You can see, आप अपने उसमें देखेंगे कि आज से 50 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जितना आज है उतना था? नहीं। पर क्या आज से 50 साल पहले लोगों की इम्यूनिटी आज से ज्यादा थी? तो हाँ। क्या बीमारियां आज से कम थी? तो हाँ। क्या हवा की शुद्धता आज से पहले 50 साल पहले ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? तो 50 साल पहले। क्या पानी की शुद्धता आज से 50 साल पहले थी कि आज है? तो 50 साल पहले। क्या खाने की शुद्धता 50 साल पहले ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? तो 50 साल पहले। पर क्या टेक्नोलॉजी आज से 50 साल पहले ज्यादा है या आज ज्यादा है? तो आज ज्यादा है। सो टेक्नोलॉजी एक्चुअली ये वाले मतलब हमारे दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। कनेक्टिविटी, हम एक सेकंड में एक साथ जूम के थ्रू और ये सब इंस्टेंटेनियसली बात कर पा रहे हैं विदाउट हैविंग द नेसेसिटी टू बी विथ ईच अदर इन अ कॉमन प्लेस। पर जो प्लास्टिक खाने वाली प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, और जो बेसिक प्रॉब्लम, जो बेसिक चीजें थी, अच्छा खाना खाना, नॉर्मल खाना खाना, वो खाना हम नहीं खा पा रहे हैं। तो मॉडर्न साइंस विल डू दीज थिंग्स कि वो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगी पर वो उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। Science has invested bombs that can only blast living bodies into pieces. उसके अलावा let's see what problem has what temporary solutions science has to offer. So if you have old age and white hair, modern science will come up with a solution ki okay, I will give you a hair dye. If you have wrinkles, modern science will come and say we'll give you a facelift. If you have diseases, back pain, stomach pain, breathlessness, they will give you painkillers. If you have breathlessness and which is leading to death, they will give you oxygen tubes. तो मॉडर्न साइंस का सारा पैचअप सॉल्यूशन है। दे कैन नॉट फ्री अस फ्रॉम द अल्टीमेट प्रॉब्लम। We can patch up the problems to fool some people for some time, but the reality will be soon exposed. Science and technology cannot stop old age. It cannot eradicate disease per se from earth. Hardly has understanding of life and death. All of us are going to get born, and all of us are going to die. Luxuries and comforts offered by science and technology cannot satisfy the soul as much as a fish taken out of water cannot be satisfied by any kind of facilities for enjoyment. The soul can only be satisfied and happy in spiritual world, which is his natural home, just as fish will naturally be happy when put back in water. So I'll tell you a very interesting story. So this is a story of a desolate island. So once what happens, a man goes to a desolate, he was going in his boat, and he reaches a desolate island where there are वहां पे मतलब कोई भी habitation नहीं है, और एक ट्राइबल एरिया है, वो सिर्फ ट्राइबल्स रहते हैं उस आइलैंड में। जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है एंड ही तो वहां पे एवरीवन कम्स एंड टेल्स हिम कि वी विल वांट यू टू बिकम द किंग ऑफ दिस आइलैंड। तो ही बिकम्स शॉक्ड। पहले तो वो डर रहा था कि भाई मैं ऐसी ट्राइबल जगह पे पहुंचा हूं, कहीं ये ट्राइबल लोग मेरे को मार तो नहीं देंगे, कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी दीज ट्राइबल्स आर सेइंग कि भाई यू प्लीज कम एंड बिकम द किंग ऑफ दिस आइलैंड। Apparently he reaches the island on 31st of December, and the tribals tell कि somehow or other भगवान हमारे साथ एक चीज ये करते हैं
कि हर 31 तारीख को वो हमारे पास एक जना भेज देते हैं who becomes our king. So we don't need to check, and by default we get who to know who is our king. So please become our king, and we will get new dresses for you and new things for you, and you will have to decide कि कहाँ पे क्या क्या होगा. So उस जगह जैसे ही वो उस बच्चे को ये पता पड़ता है तो वो बड़ा उस व्यक्ति को पता पड़ता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि भाई मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, मैं तो कल से यहाँ का राजा, मेरे हिसाब से चीजें पड़ेंगी, मेरे पास एक थ्रोन होगा और मेरे हिसाब से चीज मेरे को रोज पकवान मिलेंगे, रोज मेरी पसंद का खाना बनेगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा चीजें होंगी. तो ही बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी एंड ही ऑर्डर्स, उसके साइज के कपड़े बनते हैं, उसका क्राउन आता है, सब चीजें आती हैं. But when this is happening, suddenly he realizes कि if I am the king today, who was the king before me? What happened to him? So he says, वो वहां के लोगों को, अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है और पूछता है कि भाई वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे को आज 1 जनवरी को किंग बना दिया यहाँ के, पर इससे पहले भी तो कोई आपके राजा होंगे. तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल है. तो उसने पूछा कि आपने उस राजा के साथ क्या किया? तो उन्होंने बोला वो हमारी प्रथा है कि 1 साल तक हम एक राजा को रखते हैं और उस राजा को एक साल के बाद हम इस आइलैंड के अलावा एक और, ये जो पीछे आइलैंड दिख रहा है ना, उस आइलैंड पे हम छोड़ के आ जाते हैं. वो दैट आइलैंड इज लाइक काला पानी, जो अंडमान एंड निकोबार में जो काला पानी की सजा रहती है ना, वहां पे ना कुछ रूम है, ना कुछ फैसिलिटी है, ना कुछ खाने की जगह है, ना कोई कुछ है. वहां पे वो हम उसको छोड़ देते हैं टू हिज ओन, वो एनिमल्स के उसमें रहता है एंड वी डोंट केयर, वी जस्ट take him from here and we drop him and we wait for the new king. So this man becomes very terrified कि भाई ये क्या हो गया, मतलब मैं आज तो राजा हूं, but what is going to happen at the end of my life? 1 साल के बाद तो ये लोग सब मेरे को यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, मैं वहां से वापस कैसे आऊंगा, क्या होगा? So he figures out and he devises a solution. वो एक काम करता है, वो बोलता है कि एक फेरी डिवाइड करता है और रोज उसको इंस्ट्रक्शन करता है कि आज उस फेरी को बोलता है कि जाके वहां पे कुछ गोल्ड छोड़ के आओ, वहां पे जाके कुछ आयरन छोड़ के आओ, वहां पे कुछ ब्रिक्स रख के आओ, वहां पे कुछ सीमेंट रख के आओ, जिस आइलैंड पे वो जाने वाला है वहां पे कुछ खाना रख के आओ, वहां पे कुछ सीड्स रख के आओ, वहां पे कुछ फार्मिंग इक्विपमेंट्स रख के आओ. तो ऐसे करके वो 1 साल तक धीरे धीरे करके वो जो डेजोलेट आइलैंड था, जहां पे उसको 1 साल बाद ये ट्राइबल्स भेजने वाले थे, वहां पे सब सामानों का बंदोबस्त कर देता है, जिससे कि उसका घर बन सके, जिससे कि उसकी फार्मिंग हो सके, जिससे कि उसकी बेसिक कम्युनिटीज फुलफिल हो सके. और 1 साल क्योंकि उसके पास पावर था, वो किंग था, वो जैसा बोलेगा वैसी चीजें होने वाली थी, तो वो ये कर पाता है. और 1 साल के बाद वही चीज होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द ट्राइब्स, वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको वापस उस आइलैंड पे भेज देते हैं. पर जब तक वो उस आइलैंड पे पहुंचता है तब तक उसकी जरूरत की सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. तो वहां पे फटाफट अपना एक घर बना लेता है वहां, क्योंकि उसने ब्रिक, सीमेंट और स्टील सब भेजी हुई है. एक वहां पे फटाफट अपनी बोट बना लेता है, बेसिक खाने का इंतजाम कर लेता है और वहां से एस्केप करने का तरीका ढूंढ लेता है. तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? Where is the desolate island? Yes. So, moral of this story is कि while we are at the island and we know कि इसका end ये होने वाला है, तो उस दौरान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम यहाँ से जहां पे जाने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन हम आज से ही चालू करें. तो the wise and the foolish, what does the wise do? Wise has firm faith in God. The wise lives his life according to the laws of God. He remembers the temporary nature of this world, follows regulated life of principle to ultimately attain God. What will the foolish do? Foolish will say he has no faith in God. The foolish will eat, drink and be आज जियो, अच्छा खाओ पियो और कब तब की तब देखेंगे. जो राजा जिस तरह से उस आइलैंड पे 1 साल का टाइम था, 1 साल तक वो चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था, आगे की प्लानिंग ही नहीं करता और जो टेम्पररी नेचर था उसके अंदर मस्त हो जाता. तो क्या वो समझदारी थी? दैट वाज फूलिशनेस, क्योंकि ही विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग.
He forgets the temporary nature of this world and enjoys sinfully, not caring for the future. He is envious of others, lives unregulated life, and then he goes to hell. That's what the foolish does. So our life is like the yeah, just a second. I'm sorry. So our life is like this train journey. This train journey may there are a lot of people sitting here. In the next slide, we'll see one person has left. Now another person has left. ऐसे करके यहाँ से लोग जाते जा रहे हैं. तो our life is also like the journey of this train. कि slowly and steadily we जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जाते जाएंगे, but we will need to solve the problems. So this we look at this. I think we have paucity of time. 12:51 हो गया, so I would skip a few slides. So let's look at the Vedic wisdom and try to understand the solutions. Why am I suffering? What is the goal of life? We need to understand this question. These are the Vedic perspectives जो हमको मिलेंगे. Why do we suffer? We suffer the threefold miseries and four real problems of life because we have turned away from God and are acting sinfully against God's laws. Example is a child leaving the safe custody of parents. When a child leaves, if a child leaves the custody of his parents, then he is bound to suffer. Material problems have spiritual solutions. Aligning with God helps us overcome. So how can we align with God? We can align with God by understanding more about God. How do we understand more about God? We can understand more about God by reading scriptures, by reading Bhagavad Gita, by reading by chanting, by associating devotees, by attending classes like the ones that we are attending right now. So Vedic wisdom has answers to this. Why am I suffering and what is the goal of life? So I am suffering because I have come away from God. That is the reason of my suffering. Child leaving the safe custody of our parents, that's the reason of our suffering. And what is the goal of our life? The goal of our life should be to go back to our parent, to go back home, back to Godhead, from where we actually came from, to the spiritual world. What are the spiritual so what is the spiritual side? What do they say about death? They say, as a person puts on new dresses, giving up the old ones, the soul similarly accepts new body and gives up the old and the useless one. तो ये जो पूरा जो दिया हुआ है, it is about how transmigration takes place. तो एक बच्चा जो इसमें फोटो में सबसे पहले एक न्यूबॉर्न बेबी है, और वो पूरा वो न्यूबॉर्न बेबी से किड से एडोलेसेंस से यूथ से डिक्लाइनिंग मिड एज, ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज से फाइनली डेथ, एंड फिर उस डेथ के बाद द सोल विल अगेन कम टू अ न्यूबॉर्न बॉय. तो ये प्रोसेस चलती रहेगी. तो दैट्स व्हाट द भगवद गीता सेज कि हम लोग जो सोल है हम लोग को उसके बारे में सोचना चाहिए. वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट द बॉडी as much as we want to think about the soul. Ultimately, we have to go back home, back to Godhead. So what happens to us at death?
So it is like, you know, when a person is this example mein hai ki this person is on a cycle, then this person is on a motorcycle, then this person is in a car, then this person is in a flight, and just like the same person moves from one vehicle to the other, similarly we change this body and move from one body to the other body. This is what happens at the time of death. We just change our body and we move to a different body. The spirit soul moves from one body to other. The soul leaves the gross body behind and is taken to another womb based on the quality of desires shown in his subtle body at the time of death. So ये अब ये वाला जो transmigration है, that is a science in itself, and which we would इसके ऊपर हम और आज हमारे पास समय का बहुत constraint है, तो we will not be able to deep delve into it. पर ये हम लोग we will continue in some of our next sessions ki what happens at the time of death, what do the shastras and what does Bhagavad Gita say about death, and on what basis is the soul awarded the next body. ये दोनों topics are deep, very deep topics, and we will discuss about them in our next classes. So ये यहाँ से ये जो पूरा है कि ना it's trying to describe. Okay, maybe another 5 minutes. I'll quickly take this. So on what basis is the soul awarded the next body? So basically soul is given the next body based on two conditions. One is the desire in our mind, and second is the good and the bad karma. So the desires that we have in our mind and the karmas that we do in our life, these two things decide our destination कि हमको क्या चीज मिलेंगी. अगर हम sinful activities करेंगे तो और हमारी desires भी वैसी होंगी तो we will have such a body जो कि sins के साथ है, और अगर हम लोग ने अच्छी deeds की होंगी और हमारी desires pure होंगी तो हमको अच्छी body मिलेगी. But this is I think we would there is too little time left to delve in this, so I will like to skip the law of karma. Maybe we will take this sometime later, and I'll quickly come to the pillars of sinful life. What are the four things that we must avoid at all cost, and the main reasons for our sufferings जो हमको sin होंगे. So four things that are mentioned in the scriptures are meat eating. Meat eating is the first pillar of sinful life, killing animals and eating. So meat eating is strictly prohibited. Second is intoxication, nasha. Intoxication of any kind is strictly prohibited. Third is gambling. Gambling is strictly prohibited, one of the biggest pillars of sins. And fourth is illicit sex. Illicit sex is sexual interaction before marriage and outside marriage. Both things are strictly prohibited according to the Vedic structures, and these constitute sinful life. If we indulge in any of these activities, तो हमारा जो sinful कर्मा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, and we will get उसका reaction accordingly. तो ये चार चीजें जो हैं हमको at any cost avoid करनी है. So if we obey God's laws of following the principles of austerity, sacrifice, knowledge, association of saints, then we can attain the supreme destination. We can go back home, back to Godhead in the spiritual world, where there is no birth, no old age, no disease, and no death. So currently we are staying in a material world. This is a temporary world. This temporary world will always have these four elements. So our aim is not to solve these four elements, but the aim is to get out of this place and go back to the original place from where we have come from. And the original place is God's world. And to go to God's world, we will have to follow God's laws. And what are those laws? Austerity, sacrifice. Austerity is getting up early in the morning, doing sadhana, doing meditation, chanting the holy names of the God. So this is austerity. Sacrifice is doing yagyas, doing
कीर्तन, doing ये कृष्ण के नाम का जाप. Knowledge is cultivating understanding from the Shastras, what and various Vedic literature, understanding, getting this knowledge, and association of saints by associating with saintly persons. The more we do these four, the more our consciousness will increase, and more we will be able to reach a space जिसमें कि we will be able to avoid these four problems and attain the supreme destination. If you obey obeying God's laws is very easy. Following 5 A, B, C, D, E of life. A is associate with good people, read Bhagavad Gita, read good books, chanting, chant the holy names of Lord. D is diet, or eat diet which is offered to the Lord, and engagement, seva. Do services to God. So if we are able to do these, follow this ABCDE, ये वाले 5 principles in life, if we are able to follow, तो जो हमारे जो initial basic problems है, birth, old age, disease, death, उसको हम solve कर पाएंगे, क्योंकि we will not be taking birth again, and we can go back in the spiritual world. So the man who has escaped these 3 gates of hell, lust, anger, and greed, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. Bhagavad Gita 16.22. So यहाँ पे we are being told the steps of reaching the home of God. First you have to accept a spiritual master, then you have to study the Vedas, then do some austerities, do sense control, and then through spiritual knowledge ultimately you will go back home, back to your original destination. And then in Bhagavad Gita, Krishna says कि after attaining me, the great souls who are yogis in devotion, they never return to this miseries, because they have attained the highest perfection. So we will, once we reach the spiritual world, once we go back home, back to Godhead, then we will never come back to this material world. So I will quickly talk about the summary of the discussion that we did. Our basic problems are 4 problems: birth, old age, disease, and death. And another set of problems are threefold miseries, which is adhyatmic, adhidaivik, and adhibhautik. So these 3 are miseries because of our mind and body, because of other living entities, and because of natural disasters. Science will always offer patch-up solutions. Technology will always offer patch-up solutions. These patch-up solutions will be like the examples that we saw. कि अगर किसी को pimples हो जाते हैं and he just applies cream and he gets okay, versus permanent solution is कि you identify the problem in the blood, inject in the blood, and get over it. So what are temporary problems, and what are science is always going to offer a temporary solution, but Vedic system is going to offer a permanent solution. Permanent solution mein we need to get the Vedic wisdom. Vedic wisdom says that there is transmigration of soul which is happening. The soul is going to go from one body to the other, and it is governed by law of karma. Law of karma, if you want to follow the law of God, which will be A, B, C, D, E. A is association, B is books, C is chanting, D is diet, and E is engagement, doing service for God. When we follow these, so these 5 are like that island ki story. We are trying to slowly and steadily make the resources, built up resources for where we are going to go after our death. And if we are able to do these 5 things, then we will be permanent. We will go permanently to the Vedic world from where we have come from. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this wonderful session. It is so interesting to get this spiritual knowledge from a student or a person of science background who is from information technology. So I think many of our problems and doubts might have been solved during this lecture. So if still there is some problem or some doubts related to the session, you can just raise your hands and we will unmute you and you can ask your questions.
Excuse me, Anubhav. There are Yes, sir. some questions in the chat box. You can see. Isn't it? Okay, okay. So, sir, there is one question by Manish. Sir, the business of stock exchange is any type of gambling, he's asking. So it depends on the way you are doing it. So a business of stock exchange, if it is done like how you do gambling without, so there are fundamental research, like you research about a company, you understand that, you know, the future, like for example, let's say when COVID happened, so someone would have done an analysis that now, you know, the next things everyone is going to find the solution for COVID. There would be vaccines. So pharmaceutical industries might do well. Among these pharmaceutical industries, which are the best industries to put my money and take stocks. So if you are doing investments in stock market with a study, with analysis, with proper understanding that, you know, I have to invest in a particular company, so then it is not gambling. But if you actually do trading, in which you will say, okay, fine, you know, let me buy some stock, and without any analysis, like, you know, how you enter a casino and you don't have any science behind what you are doing, randomly you can go and say, okay, fine, like a game of cards, you play cards and you don't have any science rationale to back it up. So if it is done with that kind of a mindset, then it is gambling. But if it is done with a mindset of investment, then it is not gambling. Okay, sir. Thank you so much. Our next question is asked by one of our faculty, Smriti ma'am. Ma'am, please, I would like to request Akhil to kindly unmute, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now you can ask. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you so much, sir, for your fortune. We are fortunate today for very informative lectures. Sir, I want to ask one question regarding for myself. Sir, I am believing Ma'am, God and can you wisdom. keep the mic near you? Can you please keep the mic near you? Okay. Am I audible? Now I'm in room. Yeah, you are audible, but the clarity is not as much as it should be. Okay. I want to say one thing, sir. I believe in God and wisdom. What should we do when our goal is become a problem in our life? Sorry, what should we do? When our goal of life is become problem of our life. The goal of our life becomes the problem of our life. Yes. So actually, if the goal of your life becomes the problem of your life, then probably that goal is not a correct goal. No, it's really correct goal. I believe in karma, wisdom, Vedic, and Krishna Bhagavad. As much I believe in on that. So what should I do for the same? So I complete my goal. Okay. When we complete my goal. So I'll tell you. So जैसे अभी हमने देखा कि there are two types of solutions: temporary solutions and permanent solutions. So similarly, there are goals are also temporary and permanent. So we should always look at permanent goals. So permanent goals क्या हैं हमारे? So is our permanent goal, जैसे हमने वो Desolate Island का स्टोरी देखा कि हमारा परमानेंट गोल है कि हम लेट्स से मेरा आज का गोल है कि आई वांट टू बी द बेस्ट फैकल्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और मे बी यू नो आई वांट टू डू अटेन अ पीएचडी, आई वांट टू डू मेरे को थीसिस करना है या मेरे को पेपर राइटिंग करनी है. सो वी कैन हैव दीज काइंड ऑफ गोल्स व्हिच आर गुड गोल्स टू हैव. पर अगर हमने वो सब गोल्स कर भी लिए तो क्या आर दीज गोल्स गोइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम द मेन बिगर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, व्हिच इज बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ? द आंसर इज नो. So you need to have a proper goal. मतलब we should have हमारे जो we should first try to define कि हमारा गोल जो है वो टेम्पररी गोल में आता है कि वो परमानेंट गोल में आता है. अब अगर वो परमानेंट गोल में आता है तो हमको उसके लिए एफर्ट उसके हिसाब से करना चाहिए, और अगर वो टेम्पररी गोल में आता है तो हमको अपने एफर्ट उस हिसाब से करने चाहिए. बट अधिकतर टाइम क्या होता है हमारे साथ, हमारा जो परमानेंट गोल, जो टेम्पररी गोल रहता है ना, हम उसके साथ इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इट इज एक्चुअली नॉट द परमानेंट गोल.
and which causes us extreme attachment with that thing. So it's like ki whether you achieve a temporary goal or you don't achieve, independent of it, it is going to be taken away from you at the time of death. See, all of us know Dhirubhai Ambani, right? So Dhirubhai Ambani, ma'am, are you able to listen? Yes, sir. Yes, sir. So Dhirubhai Ambani made a fortune from almost nothing. जीरो से वो उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी करी, तो उन्होंने नेचुरली कुछ ना कुछ गोल सेट किए होंगे अपने लिए कि मैं पहले कपड़े की फैक्ट्री बनाऊंगा, फिर मैं ऑयल की फैक्ट्री बनाऊंगा, फिर मैं ऐसे करके यू नो ही वुड हैव गॉन स्टेप बाय स्टेप, सम गोल्स उन्होंने रखे होंगे, एंड बहुत सारी चीजों में उनको सक्सेस मिली होगी, हो सकता है कुछ चीजों में उनको फेलियर भी मिला होगा, बट बाय एंड लार्ज हिज स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, इजंट इट? बिल्कुल बिल्कुल. Or do you think that he would have achieved almost all his goals that he set himself maybe when he was 20 years of age? Condition he achieved. उन्होंने अगर उन्होंने अपने 20 साल की उम्र में जो गोल बनाए होंगे उन्होंने सब अचीव कर लिए होंगे, पर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वो जितने भी गोल उन्होंने अचीव किए वो सब तो खत्म हो गए ना. ही इज नॉट एबल टू कैरी एनीथिंग विथ हिम. तो अगर लेट्स से उनका मान लीजिए धीरूभाई अंबानी और उनका एक फ्रेंड है, धीरूभाई अंबानी ने एम किया कि मैं रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी करूंगा और उस तरफ वो लग गए और उनका गोल अचीव हो गया, और उनका एक दूसरा मित्र है जिसने गोल किया कि मैं भी ऐसी कंपनी अचीव करूंगा और उसने वो बंद नहीं कर पाया, बट टुडे बोथ ऑफ देम आर नॉट अलाइव. वी डोंट नो वेयर हैव दे गॉन, उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है. तो अगर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिस तरह से हम ये साइंस पढ़ रहे हैं, वी शुड बी वेरी क्लियर कि हैव वी डन समथिंग, जैसे वो डिनोना आइलैंड में है कि हमारे पास 365 डेज हैं, कि उस एक साल में क्या हमने जो नेक्स्ट आइलैंड पे हमको जाना है वहां के लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या. तो हमारे गोल का वो भी एक पार्ट होना चाहिए. एंड स्लोली एंड स्टेडीली हम जब ये जो टुवर्ड्स गॉड और ABCD ऑफ लाइफ करते हैं, जब हम एसोसिएशन करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, तो हमको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं और हमारे गोल्स अपने आप फाइन ट्यून होते जाते हैं. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु द गोल ऑफ देयर लाइफ इज टू गेट थिन. उनको पतले होने का बहुत शौक है क्योंकि वो ओबीस हैं, मोटे हैं, या थोड़े से भी ओवरवेट हैं, क्योंकि उनके मन में धारणा बनी हुई है कि यदि मैं पतला हो जाऊंगा तो मैं बहुत सुंदर दिखूंगा. पर एक्चुअली जब आप थोड़ा सा नॉलेज लेते हो, जब आप थोड़ा सा रीडिंग करते हो, थोड़ा सा समझते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअली पतला होना एम नहीं है. बड़ा एम ये है कि फिट होना, हेल्दी होना और अपनी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाना. सो विथ नॉलेज आपका गोल चेंज होते जाता है. पहले सिर्फ टेम्पररी गोल था कि ना पतला होना है और सुंदर दिखना है, पर विद टाइम विद प्रॉपर नॉलेज गोल चेंज हो जाता है एंड इट गेट्स टू कि मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि वो मेरे को लॉन्ग लास्ट सोल्यूशन देने वाला है. पतला होना लॉन्ग लास्ट नहीं देने वाला है. सो देयर आर टाइम्स कि हमारा जो गोल है वो भी एक्यूरेट गोल नहीं है बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. Definitely sure. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you, sir. Now we will take the last question of the day, which is very common question among all of us. के अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? As we can see that in this pandemic also, the person bearing good karma, they are also passing away very soon. So, what is the main reason behind it? If you can please explain. Okay. So I will try to give you an example कि कुछ समय पहले हम लोग जो हमारा जो बेसिक माइंडसेट है उसमें क्या होता है कि ना हम लोग अगर हमारे साथ कोई भी नेगेटिव चीज होती है ना तो हम उसको बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जो पॉजिटिव चीजें होती है उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. So there is a famous I am forgetting the name of this Wimbledon player. So this Wimbledon player, he won a lot of Grand Slams. Wimbledon is a game of tennis. उसने बहुत सारे Grand Slams जीते और वो अपने लाइफ के पिनाकल पे पहुंचा. बहुत सारे उसको accolades और वो मिला, name, fame, money, everything he got. And 10 या 15 years after he retired, he got a disease because of which it was a degenerative disease. There was no cure of it and he had to die.
तो और वो डिजीज ऐसी थी कि वो हजारों लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को होती है। तो वो लोगों ने उससे पूछा कि ये तुमको तो तुम यू आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई तुम हजार ऐसी बीमारी हो गई जो हजारों में से किसी एक को होती है, सबको नहीं होती है। तो वो व्यक्ति ने बोला कि भाई ये बात तो ठीक है कि मेरे को हजारों को लोगों में जिनको बीमारी नहीं होती वो बीमारी मेरे को ही है, पर विंबलडन जो है आज तक 100 या 200 150 साल की हिस्ट्री है विंबलडन की, तो टोटल मिला के 150 विंबलडन के खिताब हुए हैं, उसमें से भी मल्टीपल लोगों ने खिताब जीते होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ विंबलडन विनर्स ऑन दिस प्लैनेट एवर सिंस द विंबलडन स्टार्टेड इज हार्डली 100 और मे बी 50, बहुत कम नंबर है। और पॉपुलेशन जो है वो आज की तारीख में दुनिया की पॉपुलेशन 600 करोड़ लोगों की है, और अगर हम 1990 से देखेंगे तो पता नहीं कितने और हजार करोड़ लोगों की हो जाएगी। तो इतने लाखों हजारों करोड़ों लोगों में 100 लोग चुने गए जिनको विंबलडन का खिताब जीतने का प्रिविलेज मिला। तो बीमारी मेरे को हजारों वाली हुई, पर प्रिविलेज तो मेरे को अरबों वाला मिला। तो एक ये नजरिया होता है देखने का कि हम अधिकतर टाइम क्या करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम मतलब जो हमको चीजें मिलती हैं उसको हम देखते नहीं है ज्यादा अच्छे से, और जो नेगेटिव हमारे साथ होता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने क्या खराब किया, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में जीते हैं। दैट इज पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट इज कि जिस तरह से हमने अभी ये देखा कि ये जो भगवत गीता का पूरा प्रोसेस है दैट्स ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिंपल नहीं है। तो कई बार अभी हम लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं कि हमको कई चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो हम डिजर्व नहीं करते, और उसके लिए हमने कुछ मेहनत भी नहीं की होती, कुछ एफर्ट भी नहीं लगाया होता है, जस्ट इट्स टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, we happened to be at the right time at the right place and the circumstances became favorable और हमको वो चीज मिल जाती है। तो उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमने इस लाइफ टाइम में उसके लिए कुछ कर्मा नहीं किया होगा, पर इससे पहले ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल चल रहा है। सोल ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन चालू हुआ और जिस दिन हम मर गए उस दिन खत्म हुआ। इसके पहले के जो हमारे पास्ट लाइफ थी उसके अंदर हमने क्या किया वो हमको नहीं पता। तो जो हमारे साथ आज हो रहा है इट इज अ फंक्शन ऑफ हमारे पास्ट के कर्मास, एंड पास्ट कर्मास डज नॉट मीन ओनली ऑफ दिस लाइफ, इट ऑल्सो मीन्स अबाउट प्रीवियस लाइफ्स। तो हम सिर्फ देखते हैं कि इस लाइफ में हमने क्या किया, पर प्रीवियस लाइफ को हम नहीं देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल कैन बी कि लेट्स से आज मैं बैंक गया और मैंने वहां पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए। अब मैं रोज वहां से 100 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए ऐसे करके विड्रॉल करते रहा। और वन फाइन डे जब मैं बैंक में एटीएम कार्ड में डाला तो एटीएम कार्ड बोल देता है कि भाई अब इसके अंदर तो पैसे ही नहीं बचे। एंड मेरा कोई दोस्त होगा जिसको ये नहीं पता है कि मैंने ना हर दिन 100 रुपए, 500 रुपए ऐसे कर करके मैं धीरे धीरे खर्च करते जा रहा हूँ। उसने तो ये देखा है कि यार ये व्यक्ति जो है आज से 2 महीने पहले बैंक गया था और इसने 1 लाख रुपए डाले थे, मेरी आंखों के सामने डाले थे और वो रेसीट ली थी, पर ये जो 100 रुपए 500 रुपए खर्चा हो रहा है वो उसने नहीं देखा। तो वो क्या बोलेगा, अरे ये तो बैंक फ्रॉड निकला, ये तो एटीएम मशीन खराब है, इस आदमी के लिए तो मेरे को अभी इंस्टेंटली पता है कि इसने 1 महीने पहले ही तो मेरी आंखों के सामने ही तो ये पैसे डाले थे, पर अब आज ये वो लोग बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है। तो हमारा विजन ऐसा है, वी आर नॉट एबल टू सी कि हमने क्या विड्रॉ करते गए, क्या क्या हम सिंफुल एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, और क्या अगर हमने देखा भी है तो हमारे पास्ट में हमने क्या किया उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। Having said this particular topic question ki why do bad things happen to good people and why do good things happen to bad people, एक घंटे का एक डिस्कशन है अपने आप में। And I will request Akhil, are you there? Or is there anyone from the RISE admin team? Yes sir. Yes sir. Yes, I'm sir. there. I will request you कि इस मतलब if in the series of these topics na we can have this particular topic also. Why do good things happen to bad people? We have a lot of nice presentations and slides to share with all the people over here. Yes sir. Yes sir. Sure.
Okay, sir. Thank you so much. You have explained it very beautifully, and I think our audience have also enjoyed the whole session. I would like to take this privilege to thank you, especially for delivering this wonderful lecture, to all the dear faculties for joining, all the dear participants for joining and listening it. So thanks a lot. Thank you all for joining. Hope you have a wonderful day. Stay safe. Stay at home. Thanks a lot. Sir, with your due permission, shall we wrap up? Yes, I think we are done. So can I stop? I will just stop sharing. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay. Thank you so much.